Let's start our lab number 10. Assalamu alaikum, and the lab number 10 is on temperature sensors, right? LDRs आपने cover कर लिए, light sensors, photovoltaic cell, right? You know that sensor and transducer में difference क्या है? Transducer is something which convert any form of energy into electrical energy, and sensors में you add additional circuitry. Basically you add a transducer and additional circuitry and you form a sensor, right? So today we will be covering LM35 IC temperature sensors में RTD, n.t.c and your thermocouples. So let's start with your LM35 IC. Now this is somehow your IC looks like. It takes a DC voltage, right, and आपको ये output voltage देगा, which is actually the voltage which is created by the change in the temperature of the surrounding, right? So this is your V out due to that, and there is a ground terminal, right? ओके ये स्पेसिफिक आईसी जो है इसकी वोल्टेज वेरी करती है 10 मिली वोल्ट्स फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, राइट? सो ये आपका स्टैंडर्ड है एक तरह से, एंड इसी आईसी को वी विल बी यूजिंग इन एवरी नेक्स्ट कमिंग लैब, तो जो आपकी टेम्परेचर्स रेलिवेंट होंगी, राइट? सो remember this ratio because this is very crucial and we will be using it for knowing the temperature, right? बहुत easy lab है. ऑल वी विल बी डूइंग कि आपने आईसी को इंटरनली वोल्टेज मिली हुई है इसको, ये जो आपकी माउंटिंग है ये आपका एक इंक्लोजर है, इसके अंदर यहाँ पे एक हीटर लगा हुआ है. दिस इज़ योर आईसी LM35. यहाँ पे आपका थर्मोकपल है. दिस इज़ योर प्लैटिनम RTD एंड यहाँ पे देयर इज एन n.t.c थर्मिस्टर, राइट? So because we are studying IC, तो हम इस there is also an external IC sensor, right? But because internal में आप हीटर ऑन करेंगे, हीटर एलिमेंट का यहाँ पे इनपुट है, so give your 12 volts to your heater element, right? तो आपका हीटर ऑन हो जाएगा. when the heater with this middle one heater is on, ये आपका enclosure warm up होना शुरू हो जाएगा, and आपकी जो internal IC है वो टेम्परेचर को टेम्परेचर की चेंज की वजह से उसका वोल्टेज वेरी होना शुरू हो जाएगा. सो वी विल बी जस्ट टर्निंग ऑन द हीटर, एंड इंटरनल को आप IC 35 LM35 IC को connect it with a digital voltmeter and the other side with a ground, right? So this is all you are going to be doing in this lab. When you connect a digital voltmeter and turn on the heater, आपकी voltages rise होना शुरू होंगी. Pick that voltage. Let's say it's जो आपकी वोल्टेज बनती है 110, ये आपका कुछ इस किस्म का रेशियो है, बिकॉज 10 मिली वोल्ट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री राइज, राइट? 1 डिग्री सेंटीग्रेड. सो लेट्स से यू हैव अ रीडिंग ऑफ 0.215 वोल्ट्स, राइट? तो जो आपकी डिग्री सेंटीग्रेड होगा दैट वुड बी इक्वल टू आपकी हो जाएगा 0.215 डिवाइडेड बाय 10 मिली वोल्ट्स, राइट? डिपेंड करता है. इफ इट्स ऑल्सो मिनी तो आप अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं, एंड ये रेशियो आपका बेसिकली बताएगा जो भी आपका टेम्परेचर प्रेजेंटली उस सिनेरियो में बन रहा है, राइट? सो फाइंड आउट योर टेम्परेचर विद दिस सिनेरियो. यहाँ पे आपका बन जाएगा ये 21.5 रफली, राइट? सो 21.5 लेट्स से इज योर रूम टेम्परेचर, और यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपका वेरी होता जाएगा फॉर दिस स्पेसिफिक लैब, राइट? इसमें आपने यही करना है. यू आर स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ द योर LM35 IC transducer sensor, right? And what it's doing, it's converting your temperature change into voltage. Okay, next part is your RTD, which is a resistance, and it's temperature dependent. इसकी temperature की change होने से इस RTD की resistance change होती है. So this is how you actually study a different kind of material. Actually materials होते हैं when you study light dependent resistor, specific material यूज किया जाता है जिसकी resistance change होती है with light, right? It's a god made element, right? But इसी तरह RTD resistor temperature detectors में भी specific material यूज किया जाता है जिसकी resistance temperature के साथ change होती है, right? So समहाउ ये फिजिकली आपको इस तरह दिखने में मिलेंगे. बहुत से ज़रूरी नहीं है एक ही मटेरियल कुदरत ने बनाया हो जो जिसका टेम्परेचर वेरी करता हो, जिसका रेजिस्टेंस वेरी करती हो विद हीट. देयर कैन बी मोर देन वन मटेरियल्स, राइट? सो प्लैटिनम इज़ द वन विच इज़ यूज्ड इन योर स्पेसिफाइड लैब. सो प्लैटिनम को यूज़ करते हैं दे हैव मेड अ रेजिस्टर जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करती है बाय चेंज इन द हीट. तो इसमें हम करेंगे क्या,
because we are observing the behavior with temperature. First of all आपने इस हीटर को ऑन करना है, give 12 volts to your heater element, right, जिसकी वजह से आपका हीटर हीट ऑन होगा, and your this is your RTD, right. So connect it with a simply take 5 volts, right. आप एक potential slider ले लें, 5 volts give it 5 volts, ground the other side, and आप इस 5 volt के साथ you are connecting your platinum RTD. Now fix kind of don't initially vary your resistance, right. And आपने यहाँ पे करना ये है कि you will be observing fix your resistance, 5 volts आपने इसको दिए, and you will be observing this RTD. You are actually using again your slide potentiometer as a fixed resistor, right, in series with your RTD. It's only doing कि आपकी जो 5 volts है उसको drop down करके let's say it's providing 3 volts to your RTD, right. So आपने वो 3 volts यहाँ पे provide किए हैं, let's say initially आपके 3 के 3 ही appear हो रहे हैं, एंड टेम्परेचर के साथ आपकी वेरिएशन आएगी इन योर रेजिस्टेंस. इनिशियली ये 100 है, लेट्स से ऑन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज होगा इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज यू आर टर्निंग ऑन योर हीटर. सो आपकी रेजिस्टेंस में राइज आना शुरू होगा, विच इज़ ईजिली कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला. आर नॉट पे इट्स 0 डिग्री पे बाय डिफ़ॉल्ट इस मटेरियल की रेजिस्टेंस इज़ 100 ohms, right. Then you add the specified value and multiply it with degree rise in temperature, right. So first of all ये जो आपका डिग्री टेम्परेचर है इसको आप इसको कैलकुलेट करेंगे आप प्रीवियस मेथड से, जो आपका था ये मेथड. इंटरनल जो आपका पॉइंट है कनेक्टेड विद द डिजिटल वोल्टमीटर, ताकि वो आपको डिस्प्ले करे वोल्टेज में इस इनक्लोजर का टेम्परेचर. सिंपली यूज दिस फार्मूला अगेन टू फाइंड आउट द डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, राइट. यहाँ पे आपने एग्जैक्टली यही दोबारा यूज करना है, एंड यहाँ से आपका निकल आएगा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, राइट. फाइन, ये आपका फार्मूला है. जब once you find out the degree centigrade temperature with the help of your LM35 IC, right. LM35 IC से you actually calculated this temperature. जब आपको ये मिल गया, you will be simply putting that value of degree centigrade and multiplying it with the specific value plus adding it to R naught. Now this is the ratio जिस ratio से आपका resistance vary होता है, right. 0.085 पर डिग्री सेंटीग्रेड आपका रेजिस्टेंस में वेरिएशन आती है. सो दैट्स व्हाई वी आर एक्चुअली यूजिंग दिस वैल्यू हियर. सो 100 ohms is on 0 degree centigrade plus variation into degree centigrade temperature. Now you are calculating degree centigrade temperature with the help of your LM35 IC, right. So you will be calculating your resistance, and plus you will be observing your resistance with the help of ये जो आपका स्पेसिफाइड डिजिटल वोल्टमीटर है, राइट. ये जो आपको वैल्यू शो करेगा वही वैल्यू व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद जो आपकी इट्स आई गेस इट्स 10, बट आई विल एक्सप्लेन इट इन लैब. एग्जैक्ट जो थ्योरी वैल्यू है, आई गेस इफ़ यू मल्टीप्लाई इट विद 10 और 100 तो आपकी एग्जैक्ट जो डिजिटल वोल्टमीटर से जो भी वैल्यू आती है वो यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी. सो देयर इज एन ऑब्जर्व वैल्यू, right. Observe with help of this digital voltmeter, and then there is a calculated value which you are calculating with the help of this formula, and finally temperature जो आपका फर्स्ट स्टेप में आपने कैलकुलेट किया था वो LM35 IC की हेल्प से किया था. सो दीज आर द 2-3 स्टेप्स जिससे आप बिहेवियर स्टडी करेंगे RTD का. नाउ नेक्स्ट वन इज n.t.c जो आपका है थर्मिस्टर. नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मींस इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा विथ नहीं सॉरी टेम्परेचर के राइज होने के साथ इसकी जो बिहेवियर है वो अल्टरनेट करेगा. मींस इसकी इफ़ इट्स अ रेजिस्टेंस देन रेजिस्टेंस विल ड्रॉप विद द राइज इन टेम्परेचर. इफ इट्स पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपकी रेजिस्टेंस जो है वो राइज करेगी विद राइज इन टेम्परेचर, राइट. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन NTC एंड PTC, राइट. अगेन
ये भी स्पेसिफिक मटेरियल से बने होते हैं। ये आपके मेटल ऑक्साइड से बनते हैं, निकल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, जिनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजिस्टेंस वेरी करती है अकॉर्डिंगली, मींस उनका ड्रॉप आता है इन रेजिस्टेंस विद द राइज इन टेम्परेचर, दे आर ऑपोजिट, शोइंग द ऑपोजिट बिहेवियर, राइट। इसमें भी हम करेंगे क्या, अगेन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वी विल बी यूजिंग LM35 IC, यह आपका कंटिन्यूसली यूज़ होगा, राइट। सो इस सर्किट में आपने करना है कि आपने कनेक्ट करना है योर NTC विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनली इसको 5 वोल्ट्स मिले हुए, यू आर कनेक्टिंग योर NTC विद वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट। नाउ अगेन बिकॉज रेजिस्टेंस यहाँ पे एज सच अवेलेबल नहीं है, सो वी आर टेकिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज आर्म की जो रेजिस्टेंस है उसको हमने पिक किया है। वी आर कनेक्टिंग दिस 5 वोल्ट्स NTC with a calibrated variable resistor, right, which we are using the resistance of Wheatstone, जो एक आर्म था उसको as a resistor यहाँ पे use करें, right, and it's variable and we are requiring the variable one, so इस पूरी resistance is, this is actually 10 times the dial reading, जो भी आपकी dial की reading आएगी 10 times that plus 1 kilo ohms, right, ये आपकी total बनती है। So 5 volts NTC, then this variable resistance and this calibrated जो आपका आर्म है, right. So what we are doing here, because we want to find the value of your NTC, right, temperature के साथ, तो हम यहाँ पे करते ये हैं कि 2.5 पे we bring the voltage, because 5 is the total, 2.5 पे अगर हम voltage इस point की लेके आते हैं with and we observe it with वोल्ट मीटर, तो हमने करना ये कि बिकॉज अगर इफ़ इट्स 2.5 इसका मतलब है एग्जैक्टली जो ये टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू बनेगी वो सेम है इक्वलेंट टू योर NTC, मींस इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू सेम है क्योंकि हाफ ड्रॉप हो रही है वोल्टेज यहाँ पे, सो दैट्स हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ योर NTC, राइट। फिर आप थोड़ी सी टेम्परेचर राइज के साथ ये वैल्यू चेंज होगी, अगेन आप अपने रेजिस्टेंस को यहाँ से कैलिब्रेटेड रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे कि अगेन ये 2.5 पे वापस आ जाए, so every time we are dropping it back to 2.5 and we are calculating the specified dial reading and adding it in this version and calculating the value of your NTC, right. सो डायल रीडिंग आपको इसमें चाहिए, आपको टेम्परेचर चाहिए एंड इस फार्मूला से आप NTC की वैल्यू कैलकुलेट करके आप इसका ग्राफ बनाएंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे कि आपके टेम्परेचर राइज के साथ NTC ऑपोजिट में बिहेव करती है। थर्मोकपल भी अगेन इट्स अ टाइप ऑफ मटेरियल विच इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनल एंड क्रोमिनल एंड दोनों का जंक्शन किया जाता है। के टाइप थर्मोकपल है, इसमें होता है ये कि आपके एक जंक्शन हॉट होता है, दूसरा जंक्शन कोल्ड होता है, मींस यू हीट एक्चुअली देयर जॉइंट जंक्शन एंड दूसरा साइड जो होती है आपकी ओपन होती है, और बिकॉज ऑफ दैट हीटिंग बिहेवियर ये दोनों मटेरियल्स जो हैं इनके जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हीटअप होते हैं और आपका फ्लो ऑफ करंट जनरेट होता है, राइट। डिफरेंस ऑफ वोल्टेज क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ दैट हॉट एंड कोल्ड जंक्शन के जो दो टर्मिनल्स हैं वो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज ऑब्जर्व किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ electrical quantity, right. It was heat initially, आपने दो मटेरियल्स को ज्वाइन किया, एक जंक्शन को हीट अप किया विद द हेल्प ऑफ यू मेड अ थर्मोकपल बाय जॉइनिंग दीज टू मटेरियल। यहाँ पे जब हीट मिली एक जंक्शन पे, वहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन का जो करंट है वो जनरेट हुआ, right, and that difference of voltage travels and you can simply connect a voltmeter across it to observe that difference of voltage, but it is very minimum, right, आपकी microvolts में होता है, very less 40 microvolts per 1 degree rise in temperature, right. So to amplify it, नॉर्मली आपके वोल्ट मीटर्स में इतनी लो रेंज नहीं होती है, हम उसको एम्पलीफाई करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे। सो दिस इज सम हाउ द वर्जन, आप दोनों थर्मोकपल के आउटपुट्स को जो हॉट एंड कोल्ड जंक्शन के एम्पलीफायर में देंगे, then twice we are amplifying again to bring it to millivolts range, and finally we are observing this value, right. So आपने हॉट जंक्शन की वैल्यू लेनी है, कोल्ड जंक्शन की, कनेक्ट अ वोल्टमीटर क्रॉस इट, दिस टर्मिनल एंड ग्राउंड, दिस टर्मिनल एंड ग्राउंड, नोट द वैल्यूज जो आपकी वोल्टमीटर्स में आ रही है, नोट द डिफरेंस, राइट, एंड आपको वहाँ से उस डिफरेंस से you can find out the thermocouple voltage, right, which is actually the voltage
produced by the difference of your two voltages, right? Again, instrumentation amplifier is a refined form of differential amplifier, right? ये आपके जो जो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पे आपके इनपुट्स जो होते हैं वोल्टेज की वो बफर के वर्जन में यूज़ होते हैं. सो इनिशियली आपकी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो है वो आपका ज़ीरो मीन्स मिनिमम हो जाता है. देयर इज़ नथिंग कॉमन बिटवीन द टू सिग्नल्स. सो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इज़ अ improved and a better scenario than differential amplifier. So this is all for your heating amplifiers.